So let us start our today's discussion. Wait a second. So what is our first question? अच्छा, आप एक बार रजिस्टर खोल लीजिए, जल्दी से एंड एवरी क्वेश्चन दैट वी विल डिस्कस, अगर आपको पता है देन इट्स ओके, अगर आपको नहीं पता है देन यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक. ठीक है, दीज आर द मोस्ट easy question I can say, or the most important kind of questions that we will discuss today. So let us start with the first one. Okay, O is the point of intersection of wait a second. O is the point of intersection of two equal chords AB and CD. ये आपको अपने नोटबुक में बनाना है. Okay, solve this in your notebook. O is the point of intersection of two equal chords AB and CD such that OB is equals to OD. This is the diagram. This is suppose the center. So O A C B D. This is given 45 degree, and OB is equals to, these are the two equal chords, AC is equals to BD, that is given, and what else is given? OB is equals to OD. OB is equals to OD. This is also given. सिंपल सी बात है. देखिए हमें क्या करना है कि देन ट्रायंगल्स OAC एंड OBD आर ट्रायंगल्स OAC एंड ट्रायंगल OBD आर ट्रायंगल OAC एंड OBD. देखिए OA is equals to OC is equals to OB is equals to OD. That we can write because all of them are the radius of circle. All of them are the radius. Yes. So both of them are isosceles. Why they are similar? Why they are similar? Can you tell me? So the correct option will be option number D. That is the isosceles and similar. Can you tell me why they are similar? D is the correct option. Why they are similar? Similarity के लिए क्या क्राइटेरिया होती थी? In the two triangles the corresponding angle should be equal and the corresponding side should be in proportion. तो टू ट्रायंगल्स हैं, सपोज कीजिए OAC एंड OBD, इन दोनों में सिमिलैरिटी को हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं? हाउ कैन वी इस्टेब्लिश द सिमिलैरिटी इन बिटवीन देम? देखिए सिंपल सा है. दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस, आई मीन ऑल ऑफ देम आर इक्वल. रेडियस केवल लिख देने से सिमिलर तो नहीं हम प्रूफ कर सकते ना, हमें सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया बताना पड़ेगा. सो बाय SAS क्राइटेरिया दे बोथ आर सिमिलर. व्हाई? बिकॉज सी वी कैन राइट OA अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OD. these are the corresponding sides which are proportional. ठीक है, and angle AOC is equals to angle BOD, that is 45 degree. So according to SAS we can say that both the triangles are similar. और दो आइसोसेलेस तो है ही है, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है. सो
by this way you can say that both the triangles are similar as well as isosceles. चलिए ये हो गया, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The second question is, should I rub it? Is this done? Okay. Now read out the second question. वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब इससे आसान और क्या होगा. चलिए इसका पहले डायग्राम बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का व्हाट विल बी द डायग्राम. D and E are respectively the midpoints of the side AB and AC. Suppose this is the triangle. ABC is the triangle. So D and E are AB and AC. D and E. हाँ, that in that way only we will proceed. So these are the midpoints. So what can we write? AD is equals to BD and AE is equals to EC. ठीक है, सिंपल सा है. हमें दिया हुआ क्या है? BC is equals to 6 सेंटीमीटर, BC is equals to 6 सेंटीमीटर as well as DE is parallel to BC. सिंपल सा है. मिड पॉइंट थ्योरम हमें अप्लाई करना है या फिर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी वी हैव. तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम ही अप्लाई कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? दीज टू विल बी पैरेलल टू ईच अदर. ये तो गिवन ही है. तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दीजिए इसमें. तो क्या हो जाएगा? AD हमें पूछा क्या है इसमें? देन द लेंथ ऑफ DE. DE is equals to what? DE is equals to what? We have AD upon AB is equals to what can we write? AD upon 2AB. क्यों? क्योंकि AD जो होगा वो हाफ होगा AB का, क्योंकि ये मिड पॉइंट है. सो इट विल बी 1/2. उसी हिसाब से बिकॉज बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC. So we can write that AD upon AB is equals to DE upon BC. ये हम लिख सकते हैं या नहीं? AD upon AB is equals to DE upon BC because both of the triangles are similar. Yes or no? Can we write? If we can write this, तो क्या हो जाएगा? AD upon AB is 1/2. DE कितना दिया हुआ है? DE तो हमें निकालना ही है. एंड BC is 6. सो दिस विल बी 6/2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल्स टू DE. सो दिस विल बी 3. सो DE इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी B. B is the correct option. Now let us look at question number 3. ये जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा चलिए, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 3? इन ट्रायंगल PQR इफ PQ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. देखिए ट्रायंगल, देयर इज अ ट्रायंगल PQR, there is a triangle PQR and PQ is equals to 6, PR is equals to 8. PQ is 6 and PR is equals to 8 and QS is equals to 3. QS क्या है? चलिए इसको लगता है कि ये एक ऐसा कुछ है. QS is equals to 3 सेंटीमीटर. PS is the bisector of angle QPR. PS is the bisector of angle QPR. ये bisector, this is given. Okay. What is the length of SR? So SR is equals to what? Can you solve it? SR is equals to what? Question number 3. देखिए, there is a theorem in this which is called angle bisector theorem.
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मैं इस थ्योरम के बारे में बताता हूं। ऐसा कैसे, क्यों होगा ऐसा, why it will be there, how can we write qs upon sr, हाँ, दिस पर्टिकुलर थ्योरम इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें क्या होता है कि सपोज देयर इज अ ट्रायंगल और उसका कोई एक एंगल अगर बाइसेक्ट कर जाता है, ठीक है, देन the bisected part, the ratio of the bisected or the divided part will be equal to the proportional of the sides of the two new formed triangle। ठीक है, तो उसी वजह से हम लिख सकते हैं कि QS इक्वल्स टू SR एंड इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PR। तो इस हिसाब से व्हाट विल बी द आंसर, 3 अपॉन SR इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 8। सो SR इज इक्वल्स टू 3 into 8 upon 6। So this will be 4. So the answer will be 4 centimeter. Solve this. इस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को याद रखना है आपको। What is the theorem? If any angle is bisected of any triangle, then the two new triangles are formed. First thing. Now the theorem says that the side which is divided into two halves, the ratio of the sides which is divided into the two half is equals to the ratio of the proportion of the side of the two new triangle formed. Suppose this is PQR, this is S, इसका क्या हो जाएगा, SR upon SQ will be equal to PR upon PQ। ये एक थ्योरम है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। What is question number 4? It says the length of the diagonals of the rhombus are this and this, 16 and 12 centimeter, 16 centimeter and 12 centimeter। This is question number 4। Suppose this is the rhombus। rhombus आपको पता है rhombus के फीचर्स क्या क्या होते हैं। rhombus all the sides are equal, पाइथागोरस थ्योरम से तो होगा बट सुन लीजिए, rhombus के all the sides are equal, first thing। second thing is कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं that also bisect on the right angle। मतलब क्या हुआ कि इसके जो डायगोनल्स होंगे, these are the two diagonals of the rhombus, they will bisect each other। ध्यान रखिए, this is equals to this and this is equals to this at right angle। the diagonals, ये आपने क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में पढ़ रखा है क्लास 9 में। the diagonals bisect each other at 90 डिग्री। ठीक है, तो सपोज दिस इज अ रोम्बस। रोम्बस का नाम इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, ABCD, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो एक जो डायगोनल है उसकी लेंथ है 16, दूसरी डायगोनल की लेंथ है 12। तो जब 16 और 12 है तो उस हिसाब से जो हाफ हाफ है तो इट विल बिकम 8, दिस विल बिकम 8, दिस विल बिकम 6, दिस विल बिकम 6। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज द साइड। तो एक ट्रायंगल को मैं बनाता हूं, सपोज दिस इज द ओरिजिन, तो मैं एक ट्रायंगल को बना रहा हूं। दिस इज A, B एंड O, इसी का ये बड़ा पार्ट है, दिस इज द बिगर पार्ट। ठीक है, ये 8 है, ये 6 है। सो व्हाट विल बी AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यस और नो। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AB इज इक्वल्स टू, व्हाट विल बी द आंसर, because ये समझ आया, ये मैंने कैसे बताया, दिस इज अ फीचर ऑफ ट्रायंगल।
सॉरी फीचर ऑफ rhombus कि the diagonals bisect each other at 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इस वजह से ये जो 12 सेंटीमीटर था उसको मैंने 6 में डिवाइड कर दिया और जो 16 सेंटीमीटर था उसको मैंने 8 में डिवाइड कर दिया। और ये बिगर एक ट्रायंगल है AOB, यही मैंने यहाँ पर बनाया है और AB की वैल्यू निकाल दी है बिकॉज AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। तो सारे साइड का जो मेजरमेंट है दैट इज 10 सेंटीमीटर। डन। ये अगर हो गया तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। डन। चलिए लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज इट से? A flag pole 8 meter high casts a shadow 9.6 meter long. A flag pole is 18 meter high, casts a shadow 18 meter, ये 18 मीटर है, एक पोल है, and casts a shadow 9.6 meter long. इसके शैडो का जो लेंथ है इसको थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा। दिस इज द शैडो, दिस इज 9.6 मीटर long. So find the distance of the top of the pole from the end of the shadow. Top of the pole from the end of the shadow. सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द आंसर। इसका आंसर बताइए जल्दी से। दिस इज द पोल, व्हाट इज द आंसर? 20.4। दिस विल बिकम, हाँ द आंसर विल बी कितना आया, कैसे किया? AC is equals to 20.4 मीटर। ओके डन। पाइथागोरस लगाना है, इसको सॉल्व कर देना है बस, दैट्स इट। ओके क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? Read out the question. What is the question number 6? Diagonals of a trapezium PQRS intersect each other at point O. This is suppose the डायग्राम बनाइए अपने नोटबुक में पहले। This is PQRS, ठीक है। What is given? PQ is equals to 3RS. PQ is equals to 3RS. This is given, ठीक है। And PQ is equals to RS, ये ट्रेपेजियम है तो ये होगा ही PQ is parallel to RS, ठीक है। So what is the ratio of the areas of POQ and ROS? Area of triangle POQ upon area of triangle ROS. तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। POQ, okay, this is O, right? So POQROS। बताइए क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, सॉरी सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। सो लेट अस टॉक अबाउट दीज टू ट्रायंगल्स। देखिए यहाँ पे नहीं, मैं ऊपर बनाता हूँ। हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे? हाउ कैन वी प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स सिमिलर? जल्दी से बताइए या बनाइए अपने रजिस्टर में। नोट डाउन द क्वेश्चन इन योर रजिस्टर एंड सॉल्व इट। How can we prove these two triangles as similar? Do not tell me the answer. First, show that how these two triangles are similar. उसके बाद ही ना आप जाइएगा नेक्स्ट पे। this for ये क्या था हमारे पास? The ratio of the area of the two similar triangle is equals to the
square of the ratio of their proportional side. This was the theorem number 6.7 और 6.6 somewhere, कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका जो एरिया का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर साइड्स. तो पहले तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि ये दोनों सिमिलर है, उसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. सो यू टेल मी हाउ दे आर सिमिलर. यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल SOR is similar to triangle QOP. Okay, fine. Okay, this angle is equals to this. Alternate interior angle ORS is equals to angle OPQ. Alternate interior angles. हाँ, good, fine. So by AA similarity, very good. These are the two similar triangle. अब जब ये दोनों similar हैं तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? Area of triangle POQ upon area of triangle ROS is equals to POQ ROS. तो PQ upon RS का होल स्क्वायर. That simply means कि PQ is equals to 3RS दिया हुआ है. So 3RS upon RS का होल स्क्वायर. So this is 3. Area of triangle POQ Nine is to 1. Option B is the correct option. Now let us go to question number 7. What is the question? Read out. What is question number 7? ABCD is ABCD is a trapezium. This is P. Let us say this is Q. So if we will meet these 2 points, and then what will we do? PD is equals to 18 centimeter. Where is PD? PD 18 centimeter. This is 18. BQ is 35. BQ is 35. QC is 15. QC is 15. So what is AD? What is AD? तो क्या करते हैं, सिंपल सा एक काम करते हैं, पहले तो इसको ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, अब बताइए मुझे कि कैन वी राइट लाइक दिस ट्रायंगल. दिस इज सपोज O. कैन वी राइट लाइक दिस triangle APO is similar to triangle ADC. Can we write like this? Triangle APO is similar to triangle ADC. Why? Because this is the parallel side. ठीक है, this is the parallel side. Yes or no? या फिर इसको ऐसे लिखते हैं ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से. अभी हम लोग इसको सिमिलर नहीं प्रूव करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से काम करते हैं. बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से व्हाट कैन बी राइट? बिकॉज व्हाई? बिकॉज PO is parallel to DC. That's why we are using basic proportionality theorem. तो उस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? AP upon AD is equals to AO upon
AC. This is done. First thing. Second thing, what can we write in triangle CAB? Triangle CAB में हम क्या लिख सकते हैं? Because QO is parallel to AB, that's why again we can use basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem में क्या था? This was the first theorem of triangle that says that, which says that कि if there is a line parallel to any line of the triangle of the side of the triangle, then it divides the two sides in which the line is touching in a equal ratio. यही था ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इफ यू कैन रिकॉल. इसका मतलब होगा अगर BE इज पैरेलल टू BC तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. दिस वी कैन राइट. एनी प्रॉब्लम? तो उस हिसाब से हम AP अपॉन DP भी लिख सकते हैं. इसको ऐसे लिख दीजिए, AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC. ठीक है. उसी हिसाब से व्हाट कैन बी राइट इन दिस केस? इफ दीज टू आर पैरेलल, सो वी कैन राइट OC अपॉन AO इज इक्वल्स टू QC अपॉन BQ. कैन बी राइट लाइक दिस. दिस इज आवर इक्वेशन 2. अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इसको हम लोग एक स्टेप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, AO इज इक्वल्स अपॉन OC इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC. इसको मैंने बस रिवर्स कर दिया है, इसको ऊपर भेज दिया है, इसको नीचे कर दिया है. दिस ऑल्सो वी कैन राइट. सो लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन 2. अब देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं? AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC और यहाँ पे AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू AP अपॉन PD. तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देते हैं BQ अपॉन QC इज इक्वल्स टू AP अपॉन PD. तो BQ अपॉन QC कितना है? BQ अपॉन QC इज 35 अपॉन 15. व्हाट इज AP अपॉन PD? AP तो हमें निकालना ही है. व्हाट इज PD? PD इज 18. सो AP विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15. सो दिस इज 6 5 7. दिस इज 42. इफ दिस इज 42 तो हमें AD निकालना है. तो AD विल बी 42 प्लस 18. 42 plus 18, so this will be 60. So the answer will be 60 centimeter. Any problem? No problem. If no problem then note it down. देखिए बहुत सिंपल सा था. पहले हमने ADC ट्रायंगल को लिया है, उसके बाद हमने CAB ट्रायंगल को लिया है. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से AP अपॉन PD लिख दिया और AO अपॉन OC लिख दिया. उसी तरह से इधर भी OC अपॉन AO लिख दिया और CQ अपॉन BQ लिख दिया. डन. फिर आगे सॉल्व कर दिया है. नाउ लेट अस गो टू द 8th क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन? एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 36 centimeter square and 100 centimeter square. Area of two similar triangles are given, that is 36 centimeter square and 100 centimeter square. Length of the side of the larger triangle is 20 centimeter. Area of two similar triangles. Question number 8 is, suppose the larger triangle is 100 centimeter square and smaller is 36 centimeter square. What is given? The side of the larger triangle is this. So area of larger triangle upon area of smaller triangle is equals to कितना हो जाएगा? 100 upon 36 is equals to side of larger अपॉन साइड ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ लोअर का होल स्क्वायर. यही तो है हमारा एरिया सिमिलैरिटी थ्योरम. उस हिसाब से क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 36 का रूट अंडर इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो लार्जर साइड अपॉन
स्मॉलर साइड, ठीक है, तो स्मॉलर लार्जर साइड इज गिवन 20 सेंटीमीटर, दिस इज 10/6 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर साइड इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 6, सो व्हाट विल बी आवर फाइनल आंसर, एनी प्रॉब्लम, 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? नोट इट डाउन फास्ट. And now let us go to the next question. Question number 9. Let us go to the next question. What does it say? In the given figure, पहले तो फिगर बना लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज, ड्रॉ दिस फिगर ऑल्सो इन योर नोटबुक. दिस इज ABC एंड दिस इज CD. What is given in the figure? ACB is equals to CDA. ACB is this angle is equals to CDA. This angle is equals to this angle. Done. AC is equals to 8. AD is equals to 3. What is BD? AC is equals to 8. AD is equals to 3. What is BD? देखिए, सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल CDA व्हाट कैन बी राइट? एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D, ये तो बीच बीच में है ही. उसके बाद क्या है, एंगल A के जगह पे एंगल A होना चाहिए. तो सिंपल सा है, कौन कौन सा सिमिलरिटी हो जाएगा? ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC. This is similar. Triangle ACB is similar to triangle ADC. अब उस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? AC and AD is given ना, AC of this, चलिए AC को कॉमन ले लेते हैं. This is AC अपॉन AD इज इक्वल्स टू, इसका AC अगर हम लोग लेंगे तो इसका हमें AB लेना पड़ेगा. सो दिस इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB इंटू AD. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB इंटू AD. AB इंटू AD, ठीक है. तो AC स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा. व्हाट इज AB? दैट वी डोंट नो. व्हाट इज AD? AD इज 3. So this is 64 is equals to AB, ये 3 हो जाएगा. So what will be the value of AB? 64 upon 3. Now AB is 64 upon 3 and AD is 3. So what will be BD? माइनस कर दीजिए बस, 64 upon 3 minus 3. So this will be 64 upon 3 minus 9. So the answer will be 5, 5. So the answer will be 553. DD will be how much? ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 64 upon 3. So what will be BD? 55 upon 3. This, did you understand this? समझ आया ये? देखिए, कोई प्रॉब्लम? अच्छे से देखिए एक बार इसको, बहुत सिंपल है, गौर से देखिए समझ आ जाएगा. ये मैंने सिमिलैरिटी जो लिखा है इसको ध्यान से देखिए. सिमिलैरिटी जो मैंने लिखा है, ACB is similar to ADC.
हमने AC को ही इस वजह से लिया है यहाँ पर, क्योंकि अगर कुछ और लेते तो वैल्यू गिवन है नहीं, इस वजह से AC और AC मल्टीप्लाई करके AB की भी वैल्यू थी, AC की भी वैल्यू थी, AD अगर हम निकाल लेंगे then we can put it here and then find out the value of ABD। इस वजह से हमने AC को इधर न्यूमरेटर में और इधर डिनोमिनेटर में लिया है जानबूझकर, ताकि हमारे पास AB की वैल्यू आ जाए पूरी। डन? चलिए हो गया, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, our next question is question number 10. This will be our last question. Okay, मैंने रब कर दिया, हो तो गया ना? This is done. Okay, चलिए। Now let us take up the last question. Read out the last question. What is the last question? If ABCD is a parallelogram, question number 10. If ABCD parallelogram का पता ही आपको, opposite angles are equal and opposite sides are equal and parallel, that's why it is parallelogram. P is a point on side BC. P is a point on side BC and DP when produced. अच्छा, इसको प्रोड्यूस करना है। P is a side on AB P is a point on side BC. Okay, this is not the point, this is the point. P is the point on side BC and meets DP meets AB produced at L. अच्छा, ये L है और ये यहाँ पर इसको मिल रहा है, ठीक है? So this is our diagram. Now what is the question? Then select the correct option. Option सही correct select करने को बोला है. What are the options? DP upon BL. चलिए पहले तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं हम. What is there? देखिए, because it is a parallelogram, so we can write that AB is parallel to CD as well as AD is parallel to BC. ये क्लियर है? क्योंकि this is a parallelogram. अगर AD is parallel to BC, that's why we can also say that BP is also parallel to AD. ये जो साइड है ये इसके पैरेलल होगा, yes or no? अगर पैरेलल होगा then we can apply the basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem लगा देते हैं. So this will be BL upon AB is equals to PL upon DP. इस इतना तो हम पहले लिख ही सकते हैं. Is this in the option? DP upon BL है. DP upon BL is equals to, नहीं यहां से तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा. DP upon PL, DP upon PL क्या दिया हुआ है? BL upon DC. DP upon PL, BL upon DC. DP upon PL is equals to AB upon CD. BL is equals to CD है. DP upon PL, DP upon PL is equals to DC upon BL. हाँ यही तो होगा ऑप्शन. देखिए, कैन बी राइट लाइक दिस, DP upon PL is equals to, मैंने इसको रिवर्स कर दिया है बस, और कुछ भी नहीं किया है. DP upon PL is equals to, we can write like AB upon BL. हम लिख सकते हैं. अब AB क्या है देखिए, this AB, this is equals to CD, so we can write DP upon PL is equals to CD upon BL. ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी. सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. हमने ऐसा क्यों लिखा है, AB को CD से रिप्लेस क्यों कर दिया है? बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम एंड इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. समझ आया?
Is this done? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का क्लियर हो गया? चलिए इतना ही है क्लास 10th के ट्रायंगल के एमसीक्यू में। और इससे मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की काफ़ी सारे करवा दिए, फिर हमने पाइथागोरस का भी 2-3 प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद और है ही क्या इसमें, और सिमिलैरिटी का भी ए सिमिलैरिटी, एस सिमिलैरिटी, सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने डील कर लिए हैं। सो दैट्स इट। और भी अगर आपको कहीं एमसीक्यू मिले और भी कीजिए, और इसके बाद इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा और बाहर सीबीएसई भी नहीं पूछेगी कभी भी एमसीक्यू। सो यू शुड हैव अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लीजिए जल्दी से जल्दी। दैट्स इट, दिस मच इज इनफ फॉर द ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, और दिस इज द एमसीक्यू, ये भी हो गया। अब वी विल गो टू द नेक्स्ट। ओके।